Hello everyone. So guys, thank you for clicking on the video and I hope you guys find this video extremely helpful. One request from you is to just click on the like button, it really helps me. And the second thing that I want to tell you for your advantage, and this is something as a teacher and as a friend I'm telling you, guys, CAT exam already खत्म हो चुका है. I know you guys are worried that अच्छा गया, नहीं गया, या कैसे कितने मार्क्स आएंगे, कितने स्कोर पे कितना परसेंटाइल आएगा, और बहुत सारे क्लासेस ये वीडियोस डालने वाले हैं. But the point is that nothing is going to change how the exam went. What you can do right now, CAT कितना भी अच्छा गया, कितना भी बुरा गया तुम्हारे हिसाब से, the result can be something that is totally unexpected. But be in a position where you have the choice of 10 colleges and not that one college has options of 10 students to select from. If you are in that position, you will be in a very bad place. And अगर CAT में कुछ भी गलत हुआ, then you won't get an admission and you'll end up wasting an entire year. This is the time to start studying for all the different ME entrance examinations. Especially right now, अभी CET CMAT का preparation चालू करने का best timing है. This is when our batch on 4th of December is starting. Should know that we have sent 40 students last year to JBIMS and SIDDHAM, which is the best result in the entire country. So if you guys want, you guys can reach out to us. We are keeping 4 seminars for you guys. These are free seminars. December में होने वाले हैं. मुंबई, पुणे, नासिक एंड नागपुर, ये चारों जगह पे. दे आर इन दी ऑर्डर. पहले नागपुर होगा, बाद में मुंबई, बाद में नासिक एंड फाइनली पुणे होने वाला है. These sessions will be extremely helpful. They are free and you guys would love coming to them. Last year किया था, बहुत ज़्यादा students को help हो गई थी. Enjoy the video. Hello everyone. So guys, CAT 23 कल खत्म हुआ. मेरा अपना slot 3 था और slot 3 का मैं analysis नहीं डाल सका. But instead of analysis, I'm going to put up this video. This video takes a lot of courage. As a teacher, for me to post this video takes a lot of courage because today's video is about how I screwed up my CAT 23. So we already know, सबको पता है that CAT 23 उन्होंने कुछ तो अलग level का difficult निकाला था. You might have seen that बहुत सारे classes ने analysis डाला है. There is IMS, there is iQuanta, there is, तुम बोलो वो class ने analysis डाला, and everybody is saying that the cutoffs will drop. 99 percentile they're expecting. Even I am expecting 99 percentile around 80 से 85 के बीच में, 80 से 83 के बीच में. In fact, I am expecting. That means that the paper was tough. But what happened yesterday, because of which I can say that paper, अरे मेरी तो पूरी वाट लग गई. So now understand, when I say it, the expectations that I have from the paper are very different from what a student would have from a paper because I have taught for it. And on top of that, the 75 hard that I did, जिसकी वजह से मैं CAT के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से prepared था. But I realized one mistake that I did, and which was a grave mistake. मैं रोज जो 75 हार्ड में CAT का पेपर सॉल्व कर रहा था, I was solving it from my laptop. वो PPT मैंने बनाया था एंड वो मैं स्टूडेंट्स को सिखा रहा था. माई पर्सपेक्टिव ऑन इट वॉज कि ये मैं स्टूडेंट को कैसे समझाऊँ, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस टू द स्टूडेंट. एंड ऊपर से आई एम सो यूज्ड टू सॉल्विंग दी अदर एग्जाम्स, एंड बिकॉज CAT मैंने दी 2016 के बाद 2023 में, 7 साल बाद. सो आई वॉज सो यूज्ड टू दी अदर पैटर्न ऑफ एग्जाम्स, आई फॉरगॉट दैट CAT में कैलकुलेटर भी होता है, विच आई पेड फॉर इन माई क्वांट सेक्शन. बिकॉज इफ यू रियलाइज, मैंने एक भी मॉक नहीं दी थी. नॉट इवन a single mock I had taken this entire year, and neither did I went on and actually used the calculator by myself at all. मैंने पेपर में ट्राई नहीं किया था बिकॉज मेरे दिमाग में हमेशा से वही था दैट नहीं, कैलकुलेशन तो सारे खुद से ही करने हैं. दैट इज व्हाई आई गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू स्पीड मैथ्स. एक जगह पे मैं उसकी वजह से अटका, जिसकी वजह से मेरा एक सम तो वैसे ही गलत हो गया. So let's just start with it. VA का पेपर मेरा कैसा गया? तो VA फ्रॉम द फर्स्ट गेट गो, मैंने पहले ही जो RC था, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई RCs, तो मैंने RC सॉल्व करना चालू किया. इट वॉज अ टफ RC in terms of not the RC by itself, but the questions were very twisted. बहुत सारे कल के जो questions थे वो डबल नेगेटिव्स थे. मतलब उन्होंने इन लोग में से कोई एक नहीं है एक्सेप्ट, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम 4 में से कोई एक जन डॉक्टर नहीं है, कोई तो डॉक्टर नहीं है एक्सेप्ट. दैट मीन्स कौन डॉक्टर है, आई हैव टू फिगर दैट आउट. सो दिस मीन्स दैट दिस इज अ डबल नेगेटिव. ये वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे RC में इन द स्लॉट 3. ऑन टॉप ऑफ दैट बाद में मैंने पहले एक RC खत्म किया पर उसमें काफी टाइम चला गया. नाउ व्हेन आई से काफी टाइम, आई मीन दैट नॉर्मली मेरा RC अप्रॉक्सिमेटली 4 से 5 मिनट में हो जाता है. दिस वन टुक अबाउट 8 to 10 minutes, and 8 to 10 minutes for one RC, 4 questions was a big thing for me. यार बहुत ज्यादा टाइम चला गया. देन आई वेंट ऑन टू पैराजंबल्स. पैराजंबल मैंने एक सॉल्व किया, दूसरा सॉल्व किया, तीसरा सॉल्व किया. मैं सोचूं मुझे लगा था 2 ही पैराजंबल्स होंगे, तीसरा सॉल्व किया, चौथा भी आया. देयर वर 4 पैराजंबल्स यस्टरडे एंड आई वाज एक्सट्रीमली शॉक्ड यार इतने सारे पैराजंबल्स कहां से. उसके बाद उसमें एक पैराजंबल मेरे से नहीं हुआ. इट वाज अ टफ. एंड देन देयर वाज पैरासमरी 2 थे, दोनों बहुत ही सिंपल थे, और उसके बाद ऑड वन आउट था. एंड देयर वर 2 क्वेश्चंस ऑन कंप्लीशन ऑफ द पैराग्राफ, दैट वो स्टेटमेंट को मुझे सही जगह पे डालना है इन द पैराग्राफ. दोनों के दोनों एक्चुअली टफ थे. एक मैंने सॉल्व किया और दूसरा मैंने छोड़ दिया बिकॉज देयर वर 2 पॉसिबिलिटीज मेरे हिसाब से जहां पे बैठ सकता था.
सो दैट मेड द VARC सेक्शन ईजी टू मॉडरेट, क्योंकि उसके बाद मैंने बाद में वापस 2 RCs भी सॉल्व कर लिए. बोथ द RCs वर रिलेटिवली डूएबल. इट्स जस्ट दैट क्वेश्चंस इतने ट्विस्टेड नहीं थे, पर RC रिलेटिवली काफी ट्विस्टेड था. सो व्हाट आई फॉलोड, मैं समझा दैट RC ट्विस्टेड है तो मैं क्वेश्चंस पे मैंने जंप किया. द क्वेश्चंस वर इजी, तो मैंने क्वेश्चंस के हिसाब से ही RC पढ़ना चालू किया एंड सॉल्व्ड इट. बोथ ऑफ देम आर, आई एम श्योर, ऑलमोस्ट 100% राइट. देन कम्स द LRDI सेक्शन. आई एम सेइंग दैट बिकॉज़ मेरे सारे नोट्स वहां पे बना के रखे हैं. So yeah, LRDI section was a nightmare for me because now understand, English मैंने जो expect किया था वैसा नहीं गया, because I had expected मेरा English तो काफ़ी पहले खत्म हो जाएगा. तो I ended up solving around 14 or 15 questions in my English, out of which I'm confident that 10-12 questions तो आराम से सही मेरे हो ही जाएंगे कम से कम, and उसके ऊपर जितने होंगे वो. Then आया LRDI. LRDI में मैंने पहला ही सेट देखा and because I'm used to it तो मैंने देख के immediately solve करना चालू कर दिया. The problem happened when I actually solved the LR puzzle and I noticed कि जितना हो रहा था वो मेरा सॉल्व 4 मिनट में हो गया सॉल्व. आई चेक तो मुझे टेंशन आने लगा बिकॉज वेल मैं इतने दिन से सॉल्व कर रहा हूँ, कभी कभी हो जाता है, बट दिस इज द स्ट्रेस दैट कैट प्लेड ऑन मी. मेरा बहुत बार LR के पजल्स हो जाते हैं सॉल्व. यू माइट हैव सीन इन कैट 75 हार्ड ऑल्सो आई कैन एक्सप्लेन एन एंटायर LR पजल इन मैक्स 7 to 8 मिनट्स, वो भी हो जाता है. तो आज मेरा 4 मिनट में सॉल्व हो गया था. कल आई गॉट वरिड कि यार कैट का सेट है, और बिकॉज दिस ऑल्सो प्लेड ऑन मी बिकॉज मैंने भी मेरे स्टूडेंट से बात की थी पहले दोनों स्लॉट्स में. दे वर बोथ सेइंग LRDI सर बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, डुएबल नहीं है, कैसे करेंगे, एक सेट कर लिया तो भी बहुत है. So in my mind I was primed to thinking that अरे यार ये तो टफ है, but I forgot that मैं उनसे बात कर रहा था जो स्टूडेंट्स है और मैं खुद उनको सिखा रहा हूँ, तो हमारा डिफिकल्टी लेवल का परसेप्शन काफ़ी अलग हो जाता है. बट this is a game that the mind plays on you, and this happens with all teachers also, all other teachers. I've had conversations with them. तो वो हुआ 4 मिनट में सॉल्व हो गया. मैंने बोला कि नहीं कुछ तो मैंने गलत किया है, मिस्ड आउट ऑन समथिंग. मैंने वापस वो सम सॉल्व किया विद अ डिफरेंट अप्रोच, सेम आंसर आया, एंड माय आंसर टू दिस वाज मैंने वापस सेम गलती की यार कुछ तो. आई सॉल्व्ड इट द थर्ड टाइम एंड देन फाइनली व्हेन आई गॉट द सेम थिंग आई एम लाइक कि मेरा अगर इतना जल्दी हो रहा है मतलब मैं कुछ तो मिस आउट कर रहा या फिर आई एम मिसिंग आउट डेटा. लेट्स गो टू द क्वेश्चंस. देन फाइनली व्हाट आई डू इज दैट मैं क्वेश्चंस पे गया. क्वेश्चंस पे मेरे 3 ऐसे ही सॉल्व हो गए 5 में से, क्योंकि जो डेटा था वो सामने ही पड़ा था, बट 2 थे वो कंडीशनल्स थे. बट मैंने रियलाइज दैट मैंने जब वो कंडीशंस के जो ऑप्शंस थे वो ऑप्शंस को यूज़ करके इसमें ट्रायल एंड एरर करके रिप्लेस करना चालू किया, मेरा सेट सॉल्व हो गया. बट नाउ बिकॉज मैंने पूरा सेट ऑलमोस्ट 4 बार सॉल्व किया, मेरे 40 में से 24 मिनट चले गए थे एंड इट वॉज क्रेजी. आई वॉज अंडर क्रेजी स्ट्रेस. यार एक मैंने बाकी सेट्स देखे भी नहीं है, पहला ही सेट करने में मैं इतना ज़्यादा मगन हो गया था दैट मैंने बाकी सेट्स ही नहीं देखे. व्हाट इफ दे वर इजियर, व्हाट इफ बाकी लोगों ने 2-2 सेट सॉल्व कर लिए, बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. देन आई वेंट ऑन टू द सेकंड सेट. बहुत ज़्यादा पढ़ना था, टू मच डेटा इन इट, आई स्किप्ड. इट वाज द सेट जहाँ पे डिफरेंट टीम्स वर गोइंग टू डिफरेंट स्टेशंस. आई एम लाइक कि ये ऑपरेशंस वाला सम है, दिस विल टेक सम टाइम, एक तो पहले सम समझना पड़ेगा. थर्ड सेट वाज अ एब्सोल्यूट कैलकुलेटिव सेट, हमें कि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है. एंड देन आई वेंट टू द फोर्थ सेट. अगर फोर्थ सेट जाना, दिस इज समथिंग जो बहुत लोगों को बहुत टफ लगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा, बिकॉज इट वाज समथिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंडीशंस दी थी. सेट पढ़ना छोटा सा था बट उसको अप्लाई करके सॉल्व करना वाज एक्सट्रीमली टफ. तो वो मैंने किया, उसमें मैं आधे सम में तो पहुंच गया. देयर वर अ लॉट ऑफ नेगेटिव्स, देयर वर अ लॉट ऑफ कंडीशंस गिवन टू इट, और इधर भी पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, सो इट वाज टफ. फाइनली व्हाट आई डिड दैट आई गॉट स्टक. मुझे अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5 या 6 मिनट लगे जितना मुझे मिल रहा था उतना करने में. उसके बाद बचे थे 8 मिनट, एंड वो 8 मिनट के बाद आई वॉज स्टम्प्ड दैट अब मैं करूँ क्या. आई वेंट टू द क्वेश्चंस में ऑप्शन थे, ऑप्शन 5 क्वेश्चंस थे, एंड उसमें से 3 या 2 टीटा थे और 2 MCQs वाले थे, 2 या 3 MCQ वाले. एंड आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डू. I went to the options, I used the question with the options जहाँ पे MCQs दिए हुए थे. I was trying to replace the weightage of different वो weightage मैं वहाँ पे डाल रहा था, अप्लाई कर रहा था, and ऐसे करके वो सॉल्व हो गया. I was finally happy that actually सॉल्व हो गया, but I was still worried that have others perform better than me. This is a very bad thing because ये मुझे affect किया मेरे quants के section में. In the quant section I was already very stressed because मैंने LR का बहुत stress ले लिया. I carried that stress onto my quant section. And finally when it came to quants, I realized algebra बहुत टफ लग रहा है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ. अरिथमेटिक आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट, तो मैंने अरिथमेटिक सॉल्विंग चालू किया. मैं ढूंढ के लिटरली जो सम मैं देख रहा था मैं उसे सॉल्व नहीं कर रहा, मैं ढूंढ के वैसे ही क्वेश्चंस निकाल रहा था विच आर अरिथमेटिक बेस्ड, विच आर कैलकुलेशन बेस्ड, बिकॉज आई एम गुड विद कैलकुलेशंस. एंड ऐसा करके मैंने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए. आई सॉल्व ज्योमेट्री, आई सॉल्व अरिथमेटिक. ऐसे करके मैंने ओवरऑल पूरे सेक्शन में अप्रॉक्सीमेटली 10 या 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 11-12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. उनमें से देयर आर 2 क्वेश्चंस which caused a problem for me. एक था टाइम एंड वर्क वाला.
नाउ टाइम एंड वर्क वाला जो सम था उसमें while I was today just revising, going back to it in my mind, I realized that actually उसमें ऑप्शन चूज करके पूरा सम 35-40 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाता था, just with the understanding of how math works. अगर ऑप्शन चूज करता तो मेरा हो जाता, because the options were very doable. But finally when it came to one PNL का क्वेश्चन जिसमें मैंने अप्रॉक्स 5 या 6 मिनट डाल दी, because that was the last sum that I was doing, I was very tired. This is where I realized that कैलकुलेशन करके बहुत थक गया हूँ मैं. एंड फाइनली व्हेन इट केम टू एक्चुअली सॉल्विंग इट, जब एक्चुअली मैं सॉल्व कर रहा था, लास्ट के बचे थे 1.5 या 2 मिनट, एंड मुझे वो कैलकुलेशन जम ही नहीं रहा था, बिकॉज आई वाज सो टायर्ड, मुझे हो ही नहीं रहा था कैलकुलेट करना. एंड इन द लास्ट 10 और 8 सेकेंड्स माई थॉट वॉज, यार अगर अभी मेरे पास एक कैलकुलेटर होता ना, ये मैं सॉल्व कर देता. बिकॉज मैंने पूरी एग्जाम विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व की, आदत की वजह से, बिकॉज मुझे आदत ही नहीं है कैलकुलेटर यूज करने की. एंड दिस इज वेयर me not being conscious and me not having taken mocks really came to bite me in the ass, because ये मैंने बोला and immediately in my mind 5 सेकेंड बचे थे and I just screamed, I'm like shit, this is cat और इसमें calculators होते हैं. And but finally it was last 4 or 5 seconds pending, तो कुछ फायदा भी नहीं था. जो ऑप्शन मैंने मार्क किया था वही ऑप्शन रखा, and immediately after that I realized the option जो सेकेंड ऑप्शन था, which was the, मुझे 2 में ही confusion था और सेकेंड वाला सही था. So this is what happened in yesterday. So I could have solved more questions if I actually had used the calculator. ज़्यादा अच्छा होता. But I'm pretty happy that कल का पेपर, now this is something that is a lesson for all of you. कल का पेपर जितना भी मैंने solve किया, it was less about how much knowledge mattered, the way that the questions were asked, but more about how to navigate through the CAT exam. That कैसे तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा, अगर तुमने टाइम ज़्यादा डाला, हाउ आर यू गोइंग टू यूज दी ऑप्शंस, हाउ आर यू गोइंग टू डिटैच फ्रॉम अ सम, कैसे तुम पहले वाले सेक्शन को छोड़ दोगे, उसमें जो भी सही जो भी गलत हुआ, और अगले सेक्शन पे जाओगे. हाउ डू यू नॉट लेट स्ट्रेस प्ले गेम्स ऑन यू. अगर ये सब चीज़ें तुम्हें आती है, देन ट्रस्ट मी, योर कैट एग्जाम नेक्स्ट ईयर विल गो एक्सट्रीमली वेल. दिस इज वन थिंग दैट आई रियली विश फॉर यू गाइज टू नो, understand, and please make sure that you guys never forget this in whatever exams you take from now on. Chal, I hope this video was helpful. Bye everyone. अभी CET CMAT का प्रिपरेशन चालू करने का बेस्ट टाइमिंग है. दिस इज व्हेन आवर बैच ऑन 4th of December is starting. Should know that we have sent 40 students last year to JBIMS in Sidham, which is the best result in the entire country. So if you guys want, you guys can reach out to us. We are keeping 4 seminars for you guys. These are free seminars. December में होने वाले हैं. मुंबई, पुणे, नासिक एंड नागपुर, ये चारों जगह पे. They are in the order. पहले नागपुर होगा, बाद में मुंबई, बाद में नासिक एंड फाइनली पुणे होने वाला है. These sessions will be extremely helpful. They are free and you guys would love coming to them. Last year किया था, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प हो गई थी.